am Dr. Manoj Vadva. I'm the chairman and Paracelsus Institutes of Orthopedics and Joint Replacement. We all are passing through tougher times, a real tougher times because of this COVID situation. And unfortunately, a lot of us are locked inside the homes. People who have arthritis are basically contained in the houses and having worsening of symptoms. So in the next couple of minutes, I will sail you through, we will talk on kya hai arthritis, what is arthritis, how we can control arthritis by all modalities, be it the medicines, drugs, any non-surgical methods, and last of all, if God forbidding something goes high, what is the surgical options that we have in the current domains. I would request in the meanwhile that all those people who are listening to us on Zoom platform, in the bottom screen, you have a chat box where you can write in any question that comes to your mind. If it is a long one, you please drop me your name and phone number. Me or my teams will call you back and update you on your queries. All those who are on the Facebook Live also can write the questions. We will keep answering all those queries that you have in mind. Else, still on the third line, all those who are on a WhatsApp, please note down the number 86996. We are on this number. You can send in a query on WhatsApp. We will answer those things also. So talking about arthritis, my friends, in these Corona times becomes very, very important. Important because we live in incredible, beautiful India. बहुत लोग पूछते हैं कि why talk about arthritis? This was a recent study in Times of India where they compared all diseases, diabetes, cancer, hypertension, and we found that osteoarthritis, which means arthritis of the joints, was the topper, India's #1 ailment. And a couple of you are not aware, we are more than 18 crore sufferers of arthritis in this country. And especially old age population, 40 to 60% of this lot is above 60 years of age. And all my beautiful ladies listening to this need to understand that about 70% of knee replacement patients that we do are females. So all my sweet females listening this talk, be very, very cautious because you have a higher chances of developing this disease than unfortunately the male counterparts. Whenever I'm going to speak, our last 20 years of my summary on speaking on arthritis, I could summarize a couple of questions which everybody has in mind. डॉक्टर साहब आर्थराइटिस क्या है, किसको आर्थराइटिस होगा, क्या मैं वो बदनसीब तो नहीं जिसे आर्थराइटिस होगा, क्या आर्थराइटिस को रोका जा सकता है और क्या इसका कोई क्योर है. So I think in a summary, these are the 4-5 bubbling questions that go in the minds, and we will try to answer all these questions. So number one, to start with, what is arthritis? Arthritis is a group of disorders in which the surface of the joint, if I'm showing you this is a joint, white portion is the surface, in which the surface gets damaged, which is a picture like this. When the surface of the joint gets damaged and the bones are rubbing each other, that is a condition which we call as arthritis. As you see in this picture, arthritis would affect a lot of joints. हमारे कंधे का जोड़, कोहनी का, बैक का, चूल्हे का, घुटने का. But the joints on which we stand and walk, that means the knee and hip joints, are the worst affected by arthritis. So what causes arthritis? Tell me friends, arthritis is not just one disease, it's 100 kinds of arthritis, but the most common ones are number one, osteoarthritis. That means umar ke saath badhne wala arthritis. We were absolutely fine as we kept on increasing. Second thing is rheumatoid arthritis, गठिया language से जानते हैं इसको. Arthritis is like an iceberg. You know, जो दिखता है वो बहुत कम है और जो पानी के अंदर है वो बहुत ज्यादा है. So we see only severe affected cases of arthritis, but otherwise arthritis is there in India in a very high number. अब सवाल ये आता है कि why we say that India is the arthritis capital of the world, और कुछ चीजें इसमें है हमारी lifestyle, हमारी habits, हमारी heredity. So the first thing is, as Indians, we are very fond of sitting on the ground, squatting, stair climbing, Indian toilets. I'm a Punjabi, so I can talk about obesity is one of the very big reasons. We'll discuss. Heredity, that means genetics. मेरी दादी को भी था, मेरी माँ को भी था, मेरे भी है. Or sedentary lifestyle, which is the new gift of the current era. अब
हम सबको पता है कि आर्थराइटिस, उसका पता कैसे चलता है? दैट मीन्स सिम्टम्स अराउंड द जॉइंट्स। हम मूवी देखने गए, 3 घंटे बैठे, उठते समय जोड़ में बहुत तकलीफ थी, मॉर्निंग स्टिफनेस, जैसे कि सर्दियों में स्टार्टिंग ट्रबल होती है गाड़ी की, वी आर वेरी अनकंफर्टेबल द मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बेड से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, घुटने जाम होते हैं, थोड़ा चलना शुरू हो जाऊं, चलना हो जाए, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। स्वेलिंग इन द जॉइंट, आपके जोड़ के आसपास सोजिश आना, रात को डिस्कम्फर्ट होना, और बढ़ते बढ़ते मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट होती हैं और आखिरकार आते हुए इंसान लिम्प करना शुरू हो जाता है। Many times it affects your social and emotional well-being also, and a lot of people enter into depression because they're not active as before. हम सभी चाहते हैं हमारे घुटने इतने ज्यादा खूबसूरत, सडॉल और गुड लुकिंग दिखे, and that should be there. But unfortunately, as a surgeon, what I get to see is pictures like this: deformities, bow legs, knock knees, bent knees. ये सब लोग एक फेज पे बुरे होते 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 एक एक्सट्रीम तक पहुंचते हैं। When we talk about this knee joint, which I am going to show you here, this is a joint in which ये ऊपर की बोन है, इसे कहते हैं फीमर, जांघ की हड्डी, the leg bone, and last of all is the space in between. That means what you have is the femur, the leg bone and joint space in between, और ऊपर एक होती है पटेला जिसे हम नी कैप कहते हैं। हमारे घुटने के 3 कंपार्टमेंट है। तो आई शो यू हियर। सबसे पहले घुटने का अंदर वाला जो हिस्सा है, अगर हम थंब लगाए तो अंदर का हिस्सा है, मिडिल कंपार्टमेंट कहते हैं। सबसे ज्यादा लोगों में खराबी यहाँ पे शुरू होती है। इसके बाद आती है नी कैप के नीचे, मेरे पंजाबी कहते मेरे चपनी के थल्ले का हिस्सा खिंच गया है। दैट मीन्स ये लोगों को स्टेयर क्लाइंबिंग, रैप्स, स्लोप्स सब पे बहुत तकलीफ होगी। और वो सब लोग जो कि गठिया की बीमारी से इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें कि नॉक नीज होती है, उसमें जोड़ का बाहर का हिस्सा जाता है। तो हमारे घुटने का एक है अंदर का हिस्सा, एक है नी कैप के नीचे का हिस्सा, एक है बाहर का हिस्सा। ये तीनों हिस्से एक साथ और अलग अलग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये मैं आपको एक्सरे इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत बारी मेरे को क्वेश्चन आता है ये वाला, डॉक्टर साहब मेरे गोडे की ग्रीस खत्म हो गई है, मेरे जोड़ दी लाइनिंग जोड़ पै गया है, गैप खत्म हो गया, गैप आ गया, तो व्हाट इज दिस गैप? अगर आप लेफ्ट वाली पिक्चर को देखेंगे, दिस सेक्शन जहां पर हमारी थाई बोन है, लेग बोन है, और जो व्हाइट ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर है ये कार्टिलेज है। जो ये ग्रीन कलर देख रहे हो, दिस इज सनोवियल फ्लूइड, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में घुटने की ग्रीस बोलते हैं। एक नॉर्मल जॉइंट पे हमें दोनों साइड पे अंदर और बाहर बराबर गैप दिखना चाहिए। दैट मींस दिस इज द नॉर्मल जॉइंट। अगर आर्थराइटिस बढ़ेगा तो उस समय हमारी स्पेस कम होना शुरू हो जाएगी, हमारी बोन्स एक दूसरे के पास आ जाएंगी, दे विल कार्टिलेज विल वेयर ऑफ, they will become rough and they will start rubbing on each other. I'll show you on graphics, don't worry. बढ़ते बढ़ते हड्डियां आपस में रब करना शुरू हो गई, जैसे टायर है, एक साइड से गलत कटेगा तो वो टांग टेढ़ी हो जाएगी, आपकी कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर में बोन खत्म हो जाएगी और आपका जॉइंट काफी ज्यादा कोलैप्स और डैमेज हो जाएगा। ये वो स्टेजेस है जहां पर हमें कोई भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इस स्टेज इफेक्ट नहीं करता। दिस इज वन स्टेज वेयर सर्जरीज आर रिक्वायर्ड। तो व्हाट हैपेंस इन सिवियर आर्थराइटिस? ये जिसमें मैं आपको बता रहा था, ये येलो स्ट्रक्चर इज द कार्टिलेज। आर्थराइटिस में ये कार्टिलेज घिस जाएगा, जैसे आपका कुछ समय के बाद पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, एरियाज रॉ हो जाएंगे, और जब रॉ बोन्स आपस में रब करेंगी, जैसे हम कहते हैं खड़ी होगी वो तो लाइक कर लव कर दो, तो bones will start rubbing on each other and they will become painful. हम जॉइंट के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, रियल लाइफ पिक्चर दूरबीन से। ये जो स्ट्रक्चर है येलो से, कार्टिलेज है, और जो पॉइंटर है ये लगा है जहां पर हमारा कार्टिलेज पूरा खत्म हो चुका है और बोन्स आपस में रबिंग कर रही है। इसी तरह से हमारा हिप जॉइंट होता है, अ बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में भी इसी तरह से कार्टिलेज होगा जो बॉल कप में मूव करेगा। जब ये कार्टिलेज वेयर आउट हो जाएगा तब उस पिक्चर में इस तरह का डैमेज आएगा and the bones will be rubbing on each other. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का डैमेज भी वैसे ही होता है जैसे घुटने का है, और ये भी आपको काफी हद तक डैमेज प्रोवाइड करता है। कॉजेज सबसे पहले एज के साथ वियर एंड टियर, कार्टिलेज का जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। गठिया, जिसमें कि यंग पेशेंट्स इन्वॉल्व होंगे, स्पेशली यंग फीमेल्स। बहुत सारे यंग मेल्स, इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, यानी कि ये जो जोड़ है ये आपस में पूरा चिपक गया और जोड़ रहा ही नहीं, एक सिंगल यूनिट बन गया। क्या होता है, अगर बॉल की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, उसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं।
request everybody to be on a silent mode. रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम सरल भाषा में गठिया के नाम से जानते हैं, ये ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। इसमें पेशेंट्स बिल्कुल यंग होंगे, 18 साल का बच्चा, 20 साल, 30 साल, बहुत यंग एज पे लोग क्रिपल्ड हो जाएंगे। मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे और पेशेंट बहुत क्रिपल होंगे। हम बहुत सारी गठिया के लिए दवाइयां देते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है? लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने से उनकी जो बीमारी के ऊपर काफी इफेक्ट होता है। वो गायब तो नहीं होती, लेकिन पहले से काफी हद तक वो रिड्यूस हो जाएगी और कंटेन्ड रहेगी, और लास्ट में दवाइयों पर चलने से हम उनके जोड़ों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी आप में से आपके रिलेटिव गठिया की प्रॉब्लम हो, तो उन्हें ये बोलना है कि सही समय पर गठिया की रोकथाम की दवाइयां शुरू करें। मेजॉरिटी पेशेंट्स में जोड़ बचाए जा सकते हैं, लेकिन अगर जॉइंट डैमेज हो गए, उनके मल्टीपल जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट होगी लास्ट में जाने के बाद। दिस इज हाउ अ आर्थराइटिक पेशेंट लुक्स लाइक। टिपिकली नॉर्थ इंडियन पेशेंट, एक घुटना खराब हुआ, हाले तो डॉक्टर साहब मेरा गुजारा चल रहा है, वी डैमेज द सेकंड साइड, दोनों टांगे घिसती गई, लास्ट में दोनों टांगे टेढ़ी हो गई, और इस स्टेज पे वेट भी गेन कर लिया, सारा जोर बैक पे जाना शुरू हो गया और हमारी कमर भी खराब हो गई। As a knee surgeon, I see 80% patients coming to me at a stage जहां पर चाल खराब हो चुकी होती है, दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, और हमारी बैक मोस्टली ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ रीजन इज हाले मेरा गुजारा चल रहा सी। So the treatment of arthritis, when we say, is going to be discussed in 3 frontiers. The base of the step for everybody is preventive. No, prevention is better than cure, non-drug treatment. Number 2, हम उसके आगे निकल गए, what are the drugs and injections and therapies that I can handle. Number 3, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी हम लोग बहुत एडवांस स्टेज पे हैं, then comes the question of surgeries. तो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमारी ब्रेसेस हैं, हमारी स्टिक्स हैं, हमारे वॉकर है, लोकल हीट, मसाज, फिजियोथेरेपी, योगा। आई विल डिस्कस ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स एज अ कैरी होम मैसेज आप सबके लिए कि मुझे बेसिक स्टेज पे क्या करना चाहिए। नंबर 1, किसी को भी घुटने का आर्थराइटिस हो, बिगिनिंग में ऑफ लोडर ब्रेस देते हैं, यानी कि वो ब्रेस आपके अफेक्टेड पोर्शन से लोड शिफ्ट करके अनअफेक्टेड पोर्शन पे डाल देगा। ड्यूरिंग वॉकिंग एंड स्टैंडिंग और इनिशियल स्टेजेस पे ये आपको काफी हेल्प करेगा। स्टिक, अगर हमारे को एक घुटने में प्रॉब्लम है और हमें उसमें पेन हो रही है, वी शुड होल्ड अ स्टिक। पर एक कॉमन क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब मैं किस हाथ में स्टिक पकड़ूं? तो अगर आपके राइट घुटने में आर्थराइटिस है तो आपने लेफ्ट हैंड में स्टिक पकड़नी है। यूज इट इन द ऑपोजिट हैंड फ्रॉम द आर्थराइटिक नी। इसी तरह से हम लोग अगर सीढ़ियां चढ़नी है तो हमें किस हाथ को साथ में लेके चलना है? तो नंबर 1, अगर आपको आर्थराइटिस है और आपने जीना चढ़नी है, सीढ़ियां चढ़नी है, तो यू होल्ड द रेलिंग इन, यूज द लेफ्ट साइड अप इन अ क्लाइंबिंग अप सेशन। दैट मींस अगर मेरे राइट घुटने में आर्थराइटिस है, मैं सबसे पहले कदम अपना लेफ्ट नी के ऊपर रखूंगा, लेफ्ट लेग पे रखूंगा, और नीचे आते समय उठूंगा अफेक्टेड साइड। दैट मींस सीढ़ी ऊपर राइट नीचे रखूंगा। These are the small tips for us and stick walking. बापू रामदेव ने बहुत सारा योगा और बहुत सारे व्यायाम हम लोगों को सिखाए हैं। तो योगा and exercises help us a big way, but they help in maintenance of joint mobility. Exercises in any form like a yoga are very good, but remember 2. Number 1, योगा आपको फ्लेक्सिबिलिटी और मसल स्ट्रेंथ देगा, आपके जॉइंट को आर्थराइटिस होने से प्रिवेंट नहीं कर सकता। इट्स अ फर्स्ट कैरी होम मैसेज। नंबर 2, हर एक्सरसाइज के लिए अच्छी, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द बिगिनिंग स्टेज किस तरह से बचाएंगे। एक्यूपंक्चर लाइक थेरेपीज भी हमारे आर्थराइटिस में हेल्प करती हैं। एक्सरसाइजेस, बहुत सारी एक्सरसाइजेस जैसे कि फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम, वॉकिंग, स्विमिंग, स्ट्रेंथनिंग, अवॉइड जॉगिंग एंड हाई इंपैक्ट एरोबिक्स, ये सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइजेस में कुछ चीजों को हमने ध्यान में रखना है, वो ये है। नंबर 1, एक्सरसाइजेस करने के लिए हम कोविड टाइम्स में है जी, हमें लॉकडाउन सेशन है, हमें क्या करना है? आप घर में सिंपल स्टैटिक साइकिलिंग करो। साइकिलिंग के दौरान टिप टू रिमेंबर इज स्लो स्पीड, लो रेजिस्टेंस। टाइट करके बहुत तेज साइकिलिंग नहीं करनी है अगर आपको आर्थराइटिस है। आप कितनी भी वॉकिंग कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। क्या हम ट्रेडमिल कर सकते हैं? यस, ट्रेडमिल इज वेरी गुड फॉर यू, बट प्रोवाइडेड उसको अगेन हाई रेजिस्टेंस पे नहीं करना और बहुत ज्यादा इंक्लाइन करके नहीं करना है। किसी भी आर्थराइटिस पेशेंट
Can I request people to be on the mute mode so that everybody else can listen? Yeah. So किसी को भी आर्थराइटिस हो तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि उन्हें हार्ड कंक्रीट फ्लोर्स के ऊपर जॉगिंग नहीं करनी है। इम्पैक्ट स्पोर्ट्स यानी कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ऐसी चीजों को परहेज करना है। स्विमिंग इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज। हाइड्रोथेरेपी, अगर आपके फैसिलिटीज है, स्विमिंग जरूर करिए। सो सिंपल टोन टू एक्सरसाइजेस, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं जो आप घर पे नॉर्मल बैठे कर सकते हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं। डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइक आई एम हार्डकोर पंजाबी, वहां सारा प्यार खिला के जिताया जाता है। सो व्हाट टू अवॉइड इन अ आर्थराइटिस सिचुएशन? नंबर 1, अवॉइड ऑल ऑयली एंड फ्राइड फूड। अवॉइड ऑल जंक फूड्स। शराब के सेवन से कंट्रोल करें और मीठे से कंट्रोल करें। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज अ रॉन्ग लाइफस्टाइल, वी विल टॉक अबाउट गुड डाइट्स आल्सो फ्रीक्वेंटली, हैज टू बी अवॉइडेड। वेट को हमने कंट्रोल करना है और नियंत्रण में रखना है। देयर इज अ रिसर्च स्टडी, इफ यू सेट डाउन 1 kg योर वेट, योर लोडिंग ऑन द जॉइंट विल रिड्यूस बाय 4 kgs। अब समझने के लिए हमें समझना है कि हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और वेट को रिड्यूस करना है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, इफ आई हैव टू से, इट इज अ सिचुएशन। अब मान लीजिए मेरा स्कूटर है और स्कूटर का पिस्टन पुराना है, इंजन पुराना है, तो मैं क्या करूंगा? नंबर 1, मैं 3 लोग बैठ के नहीं चलाऊंगा, दैट मीन्स अपना वेट को कंट्रोल करूंगा। नंबर 2, मैं उसमें हवा प्रॉपर रखूंगा, दैट मीन्स उस सिचुएशन में हम अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस प्रॉपर करेंगे और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है, डॉक्टर साहब किस कंडीशन पे गर्म टकोर करनी है, हॉट पैक्स करने हैं, और किस में आइस की टकोर करनी है, आइस पैक्स करने हैं। नंबर 1, हॉट पैक्स रिलैक्सेस योर मसल्स, sort of improves your circulation. It is a very good part for arthritis patient, but diabetic patients को ध्यान रखना है। और दूसरा, जिन लोगों को स्वेलिंग हो उसके ऊपर हॉट पैक्स कभी नहीं करने। स्वेलिंग वाली में आपकी हॉट पैक्स करने स्वेलिंग और बढ़ेगी। So when the joint is warm, painful, then only do cold therapies, ice packs. Avoid Indian toilets, use Western commodes. Next step आता है हमारा मेडिसिन का। बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है, पेन किलर्स है, और ये सब लोग अपने आप से केमिस्ट से ले रहे होते हैं। दिस इज अ रॉन्ग थेरेपी। हमें पहली बात समझना है, हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, किडनीज पे, लिवर पे। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। गो बैक टू योर डॉक्टर एंड आस्क व्हाट मेडिसिन इज गुड फॉर यू। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, आपको अल्सर है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपके लिए सेफ मेडिसिन क्या है। अगर आपको ऑफ द काउंटर अपने आप से कुछ लेना है तो जस्ट टेक अ पैरासिटामोल टेबलेट। बियॉन्ड दैट पार्ट प्लीज कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। दूसरी आती हैं मेडिसिन लाइक ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्राइटिन, डाइसरीन, एम्बे वगैरह से काफी पॉपुलर हुई है मेडिसिन। हम सब कहते हैं हमारा जोड़ का कार्टिलेज खराब होता है तो इससे हमारा आर्थराइटिस होता है। अब क्या हम इसको रोक सकते हैं? तो इस तरह की कुछ मेडिसिन आती हैं जो कार्टिलेज रिपेयर मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। सच पूछिए तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आज तक कभी ये नहीं बना पाई कि इसमें बहुत बड़ा क्योर है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में लेने में कोई डाउनसाइड नहीं है एंड यू कैन टेक दीज मेडिसिन अप टू 2 years। एंड इसका रोल केवल अर्ली स्टेज पे है। अगर जॉइंट डैमेज हो गया तो लोग उसके बाद भी इसको लेते रहते हैं, उसका जीरो एडवांटेज है। इट ओनली हैज अ इफेक्ट व्हेन यू आर इन अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस एंड कार्टिलेज डैमेज, नेवर इन एडवांस स्टेज। बहुत सारे इंजेक्शन आप लोगों ने सुना होगा। जब हम इंजेक्शन की बात करें तो 2 तरह के मेन इंजेक्शन होते हैं। एक लोग यूज करते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शन, और दूसरा होता है घुटने की ग्रीस के इंजेक्शन, जिसे हम जिसको सप्लीमेंटेशन कहते हैं। स्टेरॉइड टेम्पररी इफेक्ट देते हैं, बट इन द करंट टाइम्स आई वुड से अवॉइड यूजिंग इट। उसके बहुत सारे डाउनसाइड्स हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बहुत बड़ी इशू है। ये जो इंजेक्शंस के आप पिक्चर्स देख रहे हो, सिनमिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ये हमारे जॉइंट का फ्लूइड उसे कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड, ये उसी के इंजेक्शंस हैं। जैसे हम कहते हैं यार कार का इंजन खराब हो गया था, मैंने वापस उसमें ऑयलिंग कर दी है। तो जिस समय लॉन्च हुए थे उस समय ये था कि घुटने में वापस आपने एक तरीके का ऑयल वापस डाल दिया और बोन्स आपस में रब नहीं करेंगी तो आपकी आर्थराइटिस में मदद करेंगी। But in the current based evidence-based medicine, it has not proven any advantage. मैं almost 20-30 हजार इंजेक्शंस पास में यूज कर चुका हूँ, बट एज अ नी सर्जन एक कैरी ऑन मैसेज आप सबको बोलूंगा, आप यदि कभी भी डिले भी कर रहे हैं, कोशिश करिए इंजेक्शंस मत लगाइए, बिकॉज इंजेक्शंस लगाने से अगर जॉइंट में इंफेक्शन होगी तो आपका आगे भी कुछ लाइफ में नहीं हो पाएगा। So this is how injections are given as OPD basis in your knee or your shoulder joint, जहां पर भी है। लेटेस्ट कॉन्सेप्ट में हम अपने ही बॉडी सेल्स को लेके कल्चर करके वो इंजेक्शंस देते हैं। जो लेफ्ट पिक्चर है जिसको कॉल्ड एज PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा।
हमारे ब्लड में से उसको प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट करके हम उस जॉइंट पे डालते हैं, बहुत लोग हेयर ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं। ऐसे ही बोन मैरो एस्पिरेट हमारे बॉडी के सेल्स को निकाल के कल्चर करके उसको इंजेक्ट करा जाता है। बहुत सारी रिसर्च इनके ऊपर चल रही है। आज की डेट में पॉसिबिलिटी श्योर नहीं है, बट दिस माइट बी वन फ्यूचर फॉर द कमिंग टाइम्स, जब हम कहेंगे हम जॉइंट को बिगनिंग में ही खराब होते ही ऐसे इंजेक्शंस को यूज करके उसको सर्जरी से बचा पाए। सो दोस्तों, ट्रीटमेंट प्लान एज अ नी सर्जन मैं 20 साल से एक ही चीज कर रहा हूँ, और मुझे कॉमन बड़ी बार ये क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी मासी का भी आपने करा था, मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम है, उनको भी आर्थराइटिस के लिए करें। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ डिजीज। आप किस स्टेज पे हैं वो डिक्टेट करेगा कि सारा ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी। पर अगर सारी चीजों का मैं सार करूं, कॉम्प्रीहेंशन करूं, तो ये एक स्लाइड के अंदर है। नंबर 1, एजुकेट योरसेल्फ, हैव अ गुड लाइफस्टाइल, कंट्रोल योर बॉडी वेट, do regular exercises, take good diet, and do exercises and physiotherapy. Physiotherapists play a very important role to strengthen your muscle groups. उसको बिगनिंग में जरूर करिए। ये सब कुछ के ऊपर जाएं तो हमने पेन किलर्स और ग्लूकोजामिन वाली टैबलेट्स पे पहुंचे। इन सबसे ऊपर गए तो इंजेक्शंस की स्टोरी आई, और इसी के साथ साथ हमने हॉट पैक्स, कोल्ड पैक्स, ब्रेसेस, वॉकर, वॉकिंग एड सब कुछ यूज करा। इतने पे मेजॉरिटी लॉ कंट्रोल हो गया। अब जो 5-10% जो इसके बाद भी बचे, उन सबके लिए एक रामबाण, एक न्यूक्लियर वेपन है, वो सर्जरीज है। एज अ सर्जन जब भी मैं सर्जरी की बात करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि व्हाट नेक्स्ट। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, सर्जरी होती है। हमारे कहता हूँ हमारे पास लोग आते किस स्टेज पे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नॉट द फर्स्ट लाइन। जब सब कुछ फेल कर जाता है, then people come to us where all those things that I've told you cannot be applied because the time is gone. So A, please go to your specialist doctor at the right stage if you want to control the things. जब भी हम सर्जरी करते हैं उसमें मेरे को 3 सवाल लोग मेन पूछते हैं। लेट क्यों करा? Hardly anybody says डॉक्टर साहब मैं अफोर्ड नहीं करता था, but everybody says डॉक्टर साहब बड़ा डर लगता सी। Fear is the number 1 factor. Number 2 is confidence. डॉक्टर साहब इसने ऐसा बोला, पता नहीं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी, करेंगे नहीं करेंगे, बड़े सारे नेगेटिव थॉट मन में आते हैं। नंबर 3, लोगों ने बोला जी जितना नेचुरल है उसको प्रिजर्व करो, नकली तो नकली होता है। सो दिस इज 3 क्वेश्चंस आई विल टच विद यू इन द मिथ्स। आई विल टच यू कि नकली कुछ नहीं होता, एंड दैट्स व्हाट डिस्कस। हम किस स्टेज पे सर्जरी तक पहुंचते हैं? हमने सब कुछ ट्राई करा, बट वी आर कन्फाइंड, हम पहले इतना एक्टिव नहीं है, सडनली उठना पड़ेगा गेट पे बेल हो, हम चेयर से उठते हैं, हमारी बुरी हालत हो जाती है। वी कांट लिव लाइक बिफोर, वी कांट कुक एज द वे वी यूज्ड टू बी। जिंदगी का हर कदम एक पहाड़ के समान एक अपहिल टास्क है, और वो अकेला पेशेंट ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली उस समय डिस्टर्ब होती है। वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस, बहुत लाचार महसूस करते हैं। They want emotional support, which also dies beyond a certain span of time. And painkillers are your only hope for a certain period. Ultimately, they also give way. But let me share up with you, friends. Life is too beautiful to be punished by arthritis. We should control it by all means. But now I'm going to talk about people where situation is far beyond the control by non-surgical means. उन सब के अंदर क्या होता है? अगर इस स्टेज पे, जैसे पिक्चर्स देख रहे हो, दिस इज आवर प्रीओपरेटिव स्टेज, इस स्टेज पे लोग आते हैं, लेट मी टेल यू, इस स्टेज पे आपकी कोई भी थेरेपी जो मैंने आपको अब तक बताई है वो अफेक्ट नहीं करेगी। अब इस स्टेज पे गोल्ड वेपन इज यू हैव टू कंसीडर सर्जरीज। सर्जरीज को डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होती है आर्थोस्कोपी, यानी कि दूरबीन के साथ होने वाली सर्जरी। हम दूरबीन से गए, हमारा जो डैमेज एरिया था, जैसे हम रेतीज लाते हैं ऐसे शेवर्स होते हैं, उसके साथ हमने जो डैमेज एरियाज को फ्रेशन अप कर दिया, उसमें लूज बॉडीज थी, हमने उसको निकाल दिया। हमारा जो मिनिस्कस, ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो सी शेप, इसे हम कहते हैं घुटने की गद्दी, शॉक अब्जॉर्बर। जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर में मिनिस्कस फट जाता है, ये मिनिस्कस का रिपेयर कर दिया। तो बिगिनिंग स्टेजेस पे हम ये सब थेरेपीज करके आर्थोस्कोपी, टेलीस्कोपिक सर्जरी से उस घुटने को कुछ हद तक समय खरीद सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट यंग स्पोर्ट्स पीपल है, उनके जॉइंट्स डैमेज होते हैं, इस तरह से कार्टिलेज पील ऑफ होता है। अब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स में हम डैमेज एरिया को रिमूव करके हम उसके नॉन लोडिंग एरिया से, जॉइंट के एरिया से कार्टिलेज निकाल के उसको कल्टीवेट करके और फिर वापस उस जॉइंट के एरिया में इंजेक्ट करते हैं, कार्टिलेज को इम्प्लांट करते हैं वहां पे। ये सब चीजें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल चल रही है फॉर यंग आर्थराइटिक पेशेंट्स, यंग पीपल डेवलपिंग आर्थराइटिस। अभी गारंटीड नहीं है, पर चीजें इंप्रूव कर रही हैं। This is what is going to be the next future in the next 10 years time. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि लोगों ने मुझे ऑस्टियोटमी के बारे में बोला। ऑस्टियोटमी का मतलब है टांग टेढ़ी हो गई थी, हमने उसके नीचे के एरिया में कट लगा के उसका फिलिंग करके टांग को सीधा कर दिया। हमने जॉइंट को कुछ नहीं करा, लेकिन टांग को सीधा कर दिया।
सो बेसिकली आज से कुछ साल पहले ऑस्टियोटमी बहुत ज्यादा होती थी हर एक में, बट आफ्टर द सक्सेस ऑफ नी सर्जरीज से 98-99% these have gone to the back box, rarely used today but still active for certain group of patients. बहुत सारे लोग में से पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे पार्शियल नया लॉन्च हुआ है, ना तो ये नया लॉन्च हुआ है ना ये इसका था। इट्स अंडरस्टैंडिंग हमारा जॉइंट जो है, जॉइंट हमेशा अंदर के हिस्से से हम कहते हैं खराब होता है। अगर मेरा जॉइंट का केवल अंदर का हिस्सा डैमेज है, हम पूरे जॉइंट को क्यों सरफेस करेंगे, हम केवल जॉइंट के अंदर के हिस्से की lining change करेंगे। We only will resurface the damaged area of the joint. Rest everything will remain as normal. I launched this for North India and way back 2004, 16 years back. This is where I was 2004. 16 साल पहले इसको मैंने लॉन्च किया था इस एरिया में। We have been selectively doing it. It was a new hope for knee arthritis and today I will share with you in the next 16 years ये टेक्नोलॉजी कहाँ एडवांस करी है। That means अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं इस पे, तो हम जॉइंट का केवल अंदर का हिस्सा कैप अप करते हैं, बाकी सारा जॉइंट नेचुरल रहता है। The gold standard even today is total knee replacement. मैं इसको वीडियो में जरूर बताना चाहूंगा बिकॉज बहुत लोग मेरे से पूछते हैं डॉक्टर साहब कि ये गोड्डा काट के नवा गोड्डा फिट कर देते हैं, क्या आप इसमें उतना नया डालते हो? पीपल कंफ्यूज इट विद किडनी ट्रांसप्लांट एंड लिवर ट्रांसप्लांट कि मेरी किडनी निकाली नई किडनी। वी डू नॉट टेक आउट द जॉइंट। आपको 2 वीडियो में समझ लग जाएगा कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। ये है हमारा नॉर्मल प्राकृतिक नेचुरल घुटना। This is how the joint bends up. हमारी मसल्स हैं, ये हमारा नी कैप है, ये फीमर है, टिबिया है, कार्टिलेज है। इस तरह से हमारा जॉइंट एक नेचुरल वे में मूव करता है। आर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज हो गया, हमने सिर्फ डैमेज एरिया की कैपिंग करी, बाकी सब जॉइंट वैसे ही रहा, उसी तरह से हमारा जॉइंट मुड़ना शुरू हो गया। तो विद हाई फ्लेक्शन पैरामीटर्स से टेक्नोलॉजीज में हमने नेचर को रिक्रिएट करा। दिस इज हाउ द जॉइंट मूव्स। आपकी लेग्स इस तरह से चलती हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा सरफेस है जो मैं आपको मॉडल्स पे दिखा रहा था, कार्टिलेज। व्हाइट पोर्शन इज द कार्टिलेज। ये कार्टिलेज डैमेज हो गया, हमारी बोन्स रॉ बन गई। जैसे ही कार्टिलेज डैमेज हुआ, हमारी बोन्स आपस में ग्रेटिंग ऑफ बोन्स है ना, कड़कड़ दी आवाज आती है, मेरी रबिंग होती है डॉक्टर साहब घुटनों में बहुत। बोन्स रबिंग होते होते ये बोलैक्स बन गई। ये जॉइंट का अंदर का हिस्सा डैमेज है। अगर केवल अंदर का हिस्सा डैमेज्ड है, मैंने आपको बताया कि केवल उतने हिस्से की लाइनिंग करके हम बाकी जोड़ को नेचुरल प्रिजर्व कर सकते हैं। गठिया के अंदर नॉक नीज होती हैं, इस तरह से जॉइंट का बाहर का हिस्सा डैमेज होता है। हम बिगिनिंग में उतने एरिया को भी रिकैप कर सकते हैं। अब इस सर्जरी के अंदर सारा घुटना नहीं निकाला जाता, केवल टॉप का 6 से 8 मिलीमीटर एरिया स्क्रेप ऑफ होता है। जैसे आपका प्लास्टर खराब होता है, आप उसको स्क्रेप करके नई कैटिंग करते हो। मेरा दांत खराब हुआ, मैंने दांत नहीं निकाला, उस पर बरिंग करा, फिलिंग करा और न्यू कोटिंग कर दिया, तो केवल टॉप के हिस्से की कैपिंग होती है। ये मेरी थाई बोन, जांघ की हड्डी यानी कि फीमर की कैपिंग हुई। इसी तरह से मेरी नीचे लेग की बोन होती है, जिसे हम टिबिया कहते हैं। टिबिया का भी ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही डैमेज हुआ। हमने केवल ऊपर का 8 मिलीमीटर का एरिया स्लाइस ऑफ करा। दिस इज ओनली 8 मिलीमीटर एरिया विच इज टेकन आउट। मेरा गोड्डा काट के नवा गोड्डा फिट करता, और इसके ऊपर भी एक नई कैपिंग हो गई। इन दोनों के बीच में एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जो आएगा। अब अगले कुछ मिनट में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि इनके अंदर नई टेक्नोलॉजीज क्या है कि हमारा वियर कम से कम हो, हमारी लाइफ मैक्सिमम हो। बट बेसिकली दिस फ्रेंड्स इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। इट्स एक्चुअली रीलाइनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। दिस इज हाई फ्लेक्शन नीज। अब हम 2005 में मैंने लॉन्च करा था सिस्टम, जहां पर हम आलती पालती मार सकें, हम हाई बेंडिंग पे जा सकें। बहुत एक्टिव लोग हैं जो कि पॉलिटिशियन, मुझे पोक पे जाना है, सब चीजें करना, बट यू रिक्वायर, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, इट्स फॉर पीपल हु हैव अ स्ट्रांग मसल मास, golfers, active people who can do this activities. 2006 we improvised ourselves and brought in computer based surgeries. That means अब हम सर्जरीज को एक्यूरेसी 3D प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, जहां पर हम अपनी सारी सर्जरीज को लाइव मॉनिटर्स पे देख सकते हैं। हमारे हाथ की मूवमेंट, दैट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ एक्यूरेसी अप टू अ मिलीमीटर एंड अ मिलियन डिग्रीज। तो जहां पे हम अपनी सर्जरीज की एक्यूरेसी को करते हैं, इट इज जस्ट लाइक मेरी गाड़ी का टायर प्रॉपर्ली अलाइंड है, वो टायर ज्यादा लंबा लास्ट करेगा। सेम वे अगर सर्जरी के दौरान मेरी एक्यूरेसी हाई है, माय सर्जरी इज सपोज्ड टू लास्ट लॉन्गर। 2011 I launched for this part of the world customized joint replacements, जहां पर हम स्पेशलाइज्ड सिस्टम के 3D बिल्ड करते थे, यूएस में जाते थे और वहां पे उस पेशेंट के साइज और शेप स्पेसिफिक जिग्स बन के आती थी जिसके साथ वो सर्जरी होती थी। They were customized for only that individual and that was thrown in the dustbin.
So this was surgery matching to perfection, and customized knee replacement was changing the homework a big way. और इसके साथ हमारी सर्जरी के टाइम्स बहुत मेजरली ड्रॉप होना शुरू हो गए बिकॉज सारा होमवर्क बिहाइंड द टेबल था एंड वी लॉन्च सिटी बेस्ड सर्जरीज इन इंडिया एट दैट स्टेज. बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हुई. व्हेन आई वाज हेडिंग मैक्स उस स्टेज पे वी लॉन्च दिस एट्यून. पहली सर्जरी सब मेरे फोर्टिस की टाइम की थी जब मैंने फोर्टिस में लॉन्च करी थी. ये टॉन एट्यून में था जब मैक्स के टाइम पे वी लॉन्च द बिगेस्ट इम्प्लांट फॉर जॉनसन एंड जॉनसन एंड दिस वाज अ स्पोर्ट्स मॉडल जो उस समय लॉन्च हुआ था. इसके बाद बढ़ते बढ़ते एक क्वेश्चन आया. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि यंग हैं, जो कि 30s 40s में आते हैं कि डू वी हैव टेक्नोलॉजी, डॉक्टर साहब इसकी लाइफ ज्यादा हो. मैंने तो लोगों ने किया 8 साल जॉइंट वेयर आउट कर जाता है. तो वी वेंट ऑन हाउ लॉन्ग इज माय जॉइंट गोइंग टू लास्ट. So on machines, the testing was a weird performance of 30 years. So we launched the very last technology for India, and I'll happy enough to share that we do the highest volumes in the world on this very last technologies, which is हमारे जो सब्सटेंस चेंज हो गए. अब यहाँ पर इस तरह के जो सिरेमिक सिस्टम्स हैं, ब्लैक टॉप देख रहे हैं, ऑक्सीनियम रनिंग ऑन अ वेरी हाई डेंस प्लास्टिक, जिसका वेयर एंड टियर बहुत लो था और लाइफ एनहांस हो गई. बट वी ऑल लिव इन इंडिया जहां पर लोग के स्टेज पे आते हैं वो बहुत वर्ल्ड होता है. व्हेनेवर स्पीक इन द होल वर्ल्ड आई प्राउडली से आई बिलोंग टू इनक्रेडिबल इंडिया, जहां सबको 100% रिजल्ट्स चाहिए लेकिन हमारी स्टेजेस बहुत ज्यादा एडवांस होती हैं. यू लुक एट दीस पीपल. दिस इज दिस लेडी ऑन द लेफ्ट बिफोर सर्जरी. एक घुटना खराब हुआ, दोनों हुए, वेट इंक्रीज करा, लंगड़ाना शुरू कर गए, एंड द सेम लेडी पोस्ट सर्जरीज. अब किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस स्टेज पे नहीं पहुंचते, बट दिस इज हाउ आवर इंडिया वर्क्स. People come to us at a very, very late stage. They all do good, which is what I'm going to show you, but awareness has to change. This is a very important part of my career. Jahan par quality of life. This is the girl who was the first euthanasia petitioner in the country. I read her in Fortis a couple of years back. 30-year-old gold medalist from BITS Pilani. गठिया की प्रॉब्लम थी और सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व थे. She demanded mercy killing from the President of India. First case in the country. So उस समय I was contacted by government of Himachal Pradesh doing a surgery. I did both her knees, both her hips and shoulders. She's very active and while we got an applause from the President of India, and I got a letter of appreciation from the President of India, Mrs. Pratibha Patil, at that stage for me, for Fortis Mohali and the government of Himachal Pradesh for a timely surgery. So times were changing, awareness was changing. उस समय तक लोगों को ये था अगर बीमारी बहुत ज्यादा हो गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन साइंस was increasing. Impossible at times was becoming possible. और young लोग, this girl I'm going to show you is a kid, 17 years of age. इसके लकीली इसके दादाजी का भी मैंने सर्जरी करी हुई, जिसकी मदर की भी. After everything on physiotherapy, exercises, braces, we failed. At 17, we went in and did both our surgeries with a specialized long life system. I'll show you a picture subsequently. From there on, अलग तरह की एक्सपेंशन शुरू हुई. ये लोग थे जिनको कैंसर था, हड्डी का कैंसर. अब यहाँ पर 20 साल की लड़की में आप उसकी टांग काट दोगे, इट्स वेरी ब्रूटल. इन सिस्टम्स के अंदर हम कैंसर को निकाल के स्पेशल जॉइंट सिस्टम फिट करना शुरू हो गए ताकि उस स्टेज पे जो भी उसकी लाइफ है कीमोथेरेपी से 15 साल 20 साल वो एक्टिव चलेगी. Look at these pictures. These are super deformed personalities and this is what India is. This is what a true shape. अगर हम सब लोग अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, इस तरह से लोग 20-20 साल लेट करके जॉइंट्स की हालत देखिए, मसल्स की देखिए, लिगामेंट्स की देखिए, और हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फिर भी 100% होती है. That doesn't change. So look at this picture. These pictures have to change. Now the same man post surgery. अब इनके लिए डेफिनेटली लाइफ हैज चेंज, दे बिकम वेरी एक्टिव, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज. बट लुक एट अदर साइड ऑफ इट. हमने सेम चीज को करा, सुपर कॉम्प्लिकेटेड करा, अच्छे तो हुए लेकिन लाइफ के हमने 5 या 7 साल वेस्ट कर दिए जो कि हम बचा सकते थे. सो दैट्स अ लर्निंग मैसेज आउट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स सर्जरीज. हिप आर्थराइटिस में सेम बॉल है जो कप के साथ डैमेज होगा. व्हाट इज डन? दिस इज योर हिप जॉइंट. अगेन मेरा चूल्हा बदलता नहीं होता, मेरा चूल्हा नहीं बदलते इसके अंदर में. ये इस तरह से हमारा बॉल है जो कप में मूव कर रहा है. अगर मेरा बॉल कप में मूव नहीं करेगा और जैम हो जाएगा, मैं चल तब भी पाऊंगा लेकिन हम अलग बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे, हम बैठ नहीं पाएंगे, हम एक्टिव नहीं हो पाएंगे. ये व्हाइट कलर सेम वे कार्टिलेज है, जो हिप का कार्टिलेज है जो हमारी कप के अंदर मूव कर रहा है.
जब ये डैमेज हो जाएगा तुम्हारी बोन्स मूव करना बंद कर देंगे, दे विल बिकम लाइक अ रॉक, दे विल फ्यूज अप, और उस समय पेशेंट की लिम्ब शॉर्टनिंग यानी कि टांग छोटी हो जाएगी, उनकी हिप मूवमेंट बहुत पेनफुल होंगी, ड्राइविंग, बैठना, लेटना, एकदम से उठना। इन हिप रिप्लेसमेंट आप सिर्फ वॉल को चेंज करते हो, ऐसा नहीं कि पूरा चूल्हा नया डलता है। इसी तरह से जो कप का पोर्शन है, हम इस कप के अंदर ग्रेटर्स के द्वारा स्पेस करके एक नया कप इंसर्ट करते हैं, इस पे स्पेशल कोटिंग होती है जो उस एरिया में ग्रो करेगा। आप उसको सीमेंट या कोटिंग किसके भी साथ फिक्स कर सकते हैं। सो एरिया फ्रेशन अप करा, एक कप के अंदर एक नया कप फिट हुआ। इसी तरह से जो हमारी थाई बोन है, हमारी बोन्स एक पाइप की तरह है जो अंदर से हॉलो होती है, लाइक हॉलो पाइप्स। आपने उसमें एक इम्प्लांट कंपोनेंट फिट करा जो बोन के अंदर रहेगा। अब ये कंपोनेंट बोन के अंदर गया, इसके ऊपर एक नया बॉल फिट होगा। अब वो बॉल की डिफरेंट वेरिएशंस हैं इम्प्लांट्स की हैं, विच विल अंडरस्टैंड। अब ये नया बॉल उस कप में मूव करेगा। तो दिस इज व्हाट इज हिप रिप्लेसमेंट। चूल्हा बदलना मतलब बॉल को कप के अंदर मूव कराना, ऐसा नहीं कि चूल्हा निकाल के नया चूल्हा उसमें डाल दिया। So these are the new technology where editorials articles you can find all in the newspapers on artificial ceramic hips. आजकल बहुत सारे लोग, मैं बताऊंगा 17, 16 पे सर्जरीज करवाते हैं, 17 साल के बच्चे भी होते हैं। तो what is the new revolutionary approaches जहां पर हम लोग पेशेंट्स को 2 घंटे 3 घंटे के अंदर चलने लगा देते हैं। So these are the new parameters for it. These are the new technology ceramic systems. See this young kid, 17 years of age, +1 का स्टूडेंट, दोनों चूल्हे फ्यूज्ड हैं, एंकलोजिंग बोला था, पूरे दोनों चूल्हे फ्यूज होते हैं। अब 17 साल पे सब कुछ ट्राई करने के बाद यू आर एट दिस स्टेज। नाउ मेडिकल साइंस डेफिनेटली नीड्स टू बी एक्टिव एट दिस स्टेज। इन बच्चों को एक्टिव जीना है, they have to turn back. Nobody would like surgery, but this is the only option left at these situations when you are 17. Now see the same boy 1.5 months after surgery. अब ये बच्चा अपनी मास्टर्स कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। Both the hip replaced in a single go. Definitely no kid, anybody, we are also parent, कोई नहीं चाहेगा मेरा बच्चा 17-18 साल में हैंडीकैप्ड हो, बट साइंस हैज रीच्ड टुडे आप उसको एक्टिव लाइफ बिता सकते हैं। This is again a patient who was ankylosing 20 years on bed. 20 years later we went up. So we have been getting a lot of awareness on World Arthritis Day, Hansraj Hansi on these editorials. ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं वो लोग हैं जिनकी सब सर्जरीज हो चुकी हैं, डूइंग भंगड़ा एंड एक्टिविटीज। ये लड़की वही लड़की है जो आपने 16 साल की लड़की देखी थी जो क्रिपल्ड थी। शी इज डांसिंग इन दिस पिक्चर, दिस इज Shilpa Deshpande with them. So we all need to be active. A lot of ambassadors have been coming in to create an activity frontier. हमें किस तरह से joints को supple रखना है, none else than our own Milkha Singh ji advocating activity in the role of walk, brisk walk to keep you supple, to keep your joints active. Tissue prevention surgeries, painless surgeries, stitchless surgeries, small cut surgeries. इसी तरह से हमने बोला कि 70% लोग फीमेल्स होते हैं। तो I brought in this concept couple of years back on female specific implants, यानी कि हम ये नहीं कहते कि मेरी वाली जीन्स एक फीमेल को पूरी आएगी, साइज 32 होगा, नहीं, उनका साइज एंड शेप अलग है। These are implants designed for a special shape and structure. So these are the same females doing a ramp walk after surgeries. So as technology was changing, in 2013 we launched Asia's first digital operative suite. That means हम अपनी surgeries को सब 1 millimeter degrees तक accurate कर सकते हैं, and the launch was done by former Chief Minister Mr. Badal the Cross to bring in the first digital orthopedic suite. Now going for it, बहुत लोग सोचते हैं surgeries increase कर गई, commercialize कर गई, but the role of public was extremely important. This is what I used to speak 20 years back, and I'm going to recite a history for all senior people listening this talk. Society changed only because you brought in a change. आज से 20 साल पहले जब मैं इंडिया में आया था, this was covered in the newspapers as a history. जब मैंने 5 दिन में 10 ज्वाइंट करे थे, it was in news because उस जमाने में 10 ज्वाइंट का मतलब एक हिस्ट्री एक क्रिएट कर दी, और ये हिस्ट्री लोग बढ़िया होते गए, कहते ना, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। तो लोग जुड़ते गए, अवेयरनेस बिल्ड होती गई, लोगों में कॉन्फिडेंस आता गया, हजारों में करते हुए। Now the same numbers changed. So the world record we hit on for the first time in a month, 331, broke my own records, 365, 438. But what I'm trying to see is not numbers. Numbers only tell you that society had an acceptance
And world over, this became one of the world's most successful surgeries. So I had the three first world records, hitting on to the highest 1,000 in the world, highest in a week, and then went across and crossed those milestones later years, and then to 317 I made the world's highest in a year. But all this transition was not numbers. All this transition was किस तरह से, जो main point है, science was never static. Technologies आती गई, नई नई चीजें improve करती गई. I was fortunate enough to be the chairman's award by Mr. Analjeet Singh, Zars of the North by Subir Badal, and from this it changed on to a concept. जैसे कहते हैं ना कि एक शायद हीरो जब पॉपुलर हो जाता है तो वो डायरेक्टर बन जाता है. Same was a phase when I had done couple of 30,000 joints. I realized that हम सब वो चीजें कर रहे हैं जो कि गोरों पे डिवाइस हुई और हम इंडिया में हम यूज कर रहे हैं, which is not right. Our shape and is different. So I was fortunate to get an opportunity in US to design the implants for Asian population. So Anthem and implant that I have designed for the world for Smith & Nephew is what is used worldwide today पूरी दुनिया में, which is device for Asian and fit for all. So 2016-17, we brought in the first robotics in India, robotic joint replacement. So different technologies, different concepts, meetings, gold on gold joint replacement. And these were the first launches we did for the country. First robotic, first gold on gold, first empower system. और टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंची कि we launched the patented FIFO technology. This is patented by us, fast and fast out technique. In this technique, हमने बहुत सारी cocktails build करी, where we are trying to see joint replacement surgery progresses to a daycare surgery. आप सुबह आओ, अपनी surgery कराओ, शाम को अपने घर चले जाओ. So currently we have not reached 1 day, but we have decreased the stay to around 2 days time for a single knee surgery. In this, the surgery is done in between 12 to 15 minutes. इसमें कोई ब्लड की जरूरत नहीं होती है. You are walking in 3 hours after surgery. You are onto the feet and you are going to the toilet seat in the next 24 hours. You are outside the room in next 48 hours. So surgeries have become compact. Surgery 20 साल पहले भी थी, surgery 20 साल बाद भी है. It's like a car that has changed, like a mobile that has evolved. So what I want to say is, science, the way it kept on changing, implants की quality, उनका biomaterial, surgeries की accuracy, उनकी डिजाइनिंग, बोन प्रिजर्विंग, क्या क्या चीजें हम बचा सकते हैं. So while at Paras, I feel fortunate because out here we launched for the first time in the world natural knee resurfacing, जहां पर हम कहते हैं हम आपका जॉइंट नहीं चेंज कर रहे हैं, हम आपका सिर्फ डैमेज एरिया चेंज कर रहे हैं. जस्ट लाइक जितना एरिया डैमेज है, वी ओनली रिकैप दैट एरिया, रेस्ट योर लिगामेंट्स एंड एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल. दैट मींस आपका जॉइंट का अंदर का हिस्सा डैमेज्ड है, आपका जॉइंट का ऊपर का हिस्सा डैमेज्ड है, आपका जॉइंट का बाहर का हिस्सा डैमेज्ड है, या आपके 2 पार्ट्स को चेंज करना है या 3 पार्ट्स करना है. It's basically fragmenting surgery from a whole to only the structure that is damaged to be recapped. So science improvise करती जा रही है. अब वो दिन मेरा घुटना बदलना पड़ेगा is gone. Today it is resurfacing, not replacement. It is a modified word. So going from here on, I want to share with you friends that ultimately awareness बहुत बड़ी चीज है. बहुत सारे आज भी myths हैं. आज के डेट में भी हम लोग ये जानते हैं कि यूएस में और सब जगह पे दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट पार्ट्स अक्रॉस फॉर द मिलेनियम. बट मैं कैरी होम मैसेज फॉर ऑल माय सीनियर पीपल listening to our talks, all youngsters parameter who are listening to it, is number 1, we want to improve the awareness on arthritis. हमें arthritis को रोकना है. We have to prevent disease in 95% of population. 5% surgery चाहिए. Yes, there are techniques जो मैंने आपको aware कर दिया because that is also one of the parts to understand. But in 95%, if we are concerned about our diet, if we are concerned about our lifestyle, if we are concerned about the exercises, if we are concerned we have to control the body weight, if we are equally concerned we have to discuss with the specialist at the right time and take the right medicine, things will improve. हमारे इंडिया में आज भी बड़े जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक ही बात पे सुनते रहते हैं कि एनाकोल जाओगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट 95% ऑफ द पीपल बाय द टाइम दे रीच एनी स्पेशलिस्ट दे आर इन एन एडवांस स्टेज. So please go to your specialist at the right time. Tell them to give you all non-surgical modalities first. If unfortunately you're beyond that stage, then you consider surgery as a Ramban to be done at that stage, which in the hands of an expert, done by the right way, using the best technology and the best operative suites, just like we have in all big hospitals like Paras out here.
your surgeries will be above 99% result oriented. So these are the same patients I showed the pictures before, Teddy Madi Tango Wale, with absolutely strange, and we are happy with our signatures on they could be leading a good quality of life. So these are a list of good foods that you can apply to your parts. Berries, अगर आप non-veg लेते salmon, fish, आपकी डाइट में whole meat होना, आपकी डाइट में broccoli होना, nuts, almonds, ginger, turmeric, all these cereals, ये सब good diets हैं आपके लिए. And try to avoid the fats in the diet. Try to avoid the junk foods. Try to avoid pizzas and burgers and all sweets. And obviously excessive amount of alcohol. They do not help you. So with all these parameters in mind, I would appreciate all of you to come across here to be on this interactive webinar. And if ever you have any question and you want to reach me on any WhatsApp or any messaging, you want to have any detail, please note this number 86996 where you can reach me on any discussion platform that you require. Otherwise, if you are on Zoom right now or you are on Facebook platforms, please अपना नाम और नंबर छोड़ दीजिए. One of us will call you back and address all the questions because it was a wide topic. I mean, I can speak on multiple hours for a same portfolio, but I wanted to keep it comprehensive. Rest any individual things we will take on. इसी के साथ साथ, I think Paras team has touched base with a few of our VIP people who would like to share their experiences at this time. And Ankti would like me to stop my sharing. And